Okay, what are RWA and what are what is it asset tokenization? So real world assets are physical assets. House is a real world asset, car is a physical assets. Another a flavor of real world assets are US government issued bonds, just a US treasury bonds, they are also considered as real world asset. Asset tokenization जो हमको सुनने में आता है, what does it mean? It means real world assets, bringing these real world assets to on-chain assets, like on-chain assets like BTC, ETH, Avalanche, Phantom, all these blockchains, where the token existence is a must or is required for the existence of the chain itself, right? So ये on-chain assets पे asset off-chain assets या i.e. real world assets को लाना is simply asset tokenization, right? So फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 100,000 USD का एक रियल एस्टेट एसेट का वैल्यू है, सो issuing the security tokens or issuing the token which is worth 100,000 and representing that real world asset, let's say एक house A है, उसका 100,000 का मैंने एक token issue कर दिया Ethereum पे, that is simply asset tokenization is, and these are broadly speaking all these RWA projects are. So इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं. Some potential use cases of blockchain in RWA. So blockchain, using the blockchain technology, how we are disrupting this area is, one is real estate tokenization, and the other example can be private credit or lending protocols. So अभी एसेट टोकनाइजेशन को थोड़ा और समझने के लिए कि व्हाट बेनिफिट इट इज़ ब्रिंगिंग अप, लेट्स कंसीडर दिस एग्जांपल. सो अज्यूम एक देयर इज़ अ कंपनी ABC, वो रियल एस्टेट कंपनी है. देयर इज़ अ पर्सन एक्सेल है, लेट्स से आई वांट टू इन्वेस्ट 100,000 USD in company ABC because it's a well known, a very reputed company. So अभी का प्रोसेस कैसा है? This scenario is कि अगर मुझे 100,000 USD इन्वेस्ट करना है, so company will give me the bank account details, company will send me a lot of paperwork, maybe online or offline in a physical form. I have to complete that paperwork. फिर कंपनी के बैंक अकाउंट डिपॉजिट में मैं पैसा जमा कराऊंगा. लेट्स से इफ इट इज़ फ्राइडे एंड ऑफ डे, तो वो पैसा मेरे पास मंडे ट्यूसडे को कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा. दे विल वेरीफाई एंड दे विल कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज, पेपर वर्क एट्सेट्रा. उसके बाद दे विल ईदर बाय अ पीस ऑफ लैंड और मल्टीपल लैंड्स, राइट, उस 100,000 USD के इन्वेस्टमेंट पे, राइट. अभी एरिया, देर आर लॉट ऑफ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स इन दिस करेंट प्रोसेस और probably things that can be improved by using blockchain as a technology, by tokenizing this asset, right? So problems are huge stake of paperwork, online forms, of course time consuming process है अभी का अगर देखा जाए तो. शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इन स्ट्रेस सिनेरियो, समझो अगर मुझे रात को 12 बजे ज़रूरत पड़ता है and I want to partially liquidate my asset, I can't immediately do that. So short term liquidity is again a challenge here. Efficient नहीं है process. There are a lot of intermediary involved. There is a lot of dependency also in terms of the system, etc. Expensive and it's not cost effective, right? Now, how asset tokenization is solving this problem and what are the benefits of it? So scenario लेते हैं कि जहाँ पे कंपनी ABC ने token issue किए हैं which is worth 100,000, right? So what it's doing is it's issuing ERC20 on say Ethereum chain. अब Ethereum blockchain को आप database समझ लो कि like उस database में 100,000 USD के token है, राइट, फॉर कंपनी ABC का जो रियल वर्ल्ड का जो एसेट है 100,000 का, जो उसको इन्वेस्ट करना था. लेट्स से उसने एक लैंड खरीदा, उसके 100,000 लैंड 1 2 3 का उसने 100,000 USD के 100,000 टोकन्स इशू किए. लेट्स से 1 टोकन इज इक्वल टू 1 USD, राइट. वो इथेरियम पे उसने इशू किए. अभी यहाँ पर व्हाट वुड हैपन इज कि पर्सन X, या लेट्स से मुझे अगर 100,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, एक सेकेंड, जस्ट स्मॉल करेक्शन या सो अगर मुझे 100,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, तो इट्स इज़ वेरी सिंपलर फॉर मी. अगर मेरा मेटामास्क वॉलेट है और कंपनी के पास उनका खुद का ETH ERC20 वॉलेट है, तो इट्स वेरी क्विक एंड अ वेरी कॉस्ट एफिशिएंट ट्रांजैक्शन फ्रॉम माई साइड. मैं सीधा उनके ERC20 वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र कर दूंगा. And rather than waiting for T+1 or T+2 days to get the money into company account and they can verify, so a very quick or efficient transaction process रहेगा.
दूसरा यहाँ पर सेकंड थिंग मैं बात करूँगा क्विकर लिक्विडिटी की कि लेट्स से ओके सो टेकिंग वन स्टेप बैक, जब मैंने यहाँ पे 100,000 USD ट्रांसफ़र कर दिया, सो इन रिटर्न व्हाट कंपनी विल डू इज़, कंपनी के लिए बहुत इजी रहेगा, 100,000 टोकन्स जो उन्होंने इशू किए हैं, दे विल आइडेंटिफाई, एंड अगेन ट्रैकिंग बहुत इजी रहते हैं, दे विल आइडेंटिफाई कि ये ईथ वॉलेट इज़ बिलोंगिंग टू मी, बिकॉज जब मैं KYC करूँगा इस कंपनी के थ्रू, तो आई विल से कि दिस इज़ माई इथीरियम वॉलेट विच इज़ लाइक ऑफिशियल और known Ethereum approved Ethereum wallet from company side. कंपनी इमीडिएटली 100,000 USD के टोकन मेरे इथीरियम वॉलेट में ट्रांसफर कर देगी. सो आई वुड हैव 100,000 USD वर्थ ऑफ टोकन विच आई ओन. अगेन अनदर बेनिफिट इट्स ब्रिंगिंग इज अ सेल्फ कस्टडी. अब कंपनी का इससे कहीं लेना देना नहीं है. अगर मेरे को लिक्विडेट करना है पहले के प्रोसेस में, देर इज अ डिपेंडेंसी ऑन द कंपनी. नाउ एसेट टोकनाइजेशन होने के बाद, टोकन इशू होने के बाद, सारे टोकन मेरे खुद के वॉलेट में है. सो आई एम द कस्टोडियन, आई एम द कस्टोडियन ऑफ ऑल द टोकन्स, राइट. तो अब दूसरा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है क्विकर लिक्विडिटी का, राइट. से 12 in the night I want to liquidate and I am in the immediate need of the funds and what I need is only 20,000 USD. So मैं क्या करूँगा, I can simply liquidate these 20,000 without having the dependency of the company ABC as long as the buyer is aggregated creditor. So इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं. इस पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर ऑल द बायर सेलर एक मार्केट प्लेस डेवलप हो जाएगा एग्रीगेटेड क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स का, राइट. सो लेट्स से इफ it is adopted widely, right. So if let's say there are thousands of aggregated creditors, let's say retail investor or institute investors, right. इंस्टीट्यूटेड इन्वेस्टर्स वो यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करते हैं, KYC कराते हैं. सो आई कैन गो, देयर विल बी अ मार्केट प्लेस दैट कैन बी डेवलप्ड फॉर दिस सेकेंडरी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ दीज शेयर्स, राइट. सो 100,000 USD का शेयर है, कंपनी रेप्यूटेड है सेकेंडरी मार्केट में, देर आर बायर्स, देर इज अ लिक्विडिटी अवेलेबल हु आर इन द नीड ऑफ लाइक इन्वेस्टिंग 20,000 30,000 एक्सेट्रा फॉर दूज टोकन्स, राइट. तो आई विल गो टू दैट मार्केट प्लेस, वहाँ पर भी मेरा KYC होगा. आई एम वन ऑफ द एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स. सो उस मार्केट प्लेस में सेफ्टी का, सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आई कैन पार्शली लिक्विडेट माई शेयर्स. आई कैन शेयर immediately sell 20,000 at any point of the day if assuming that liquidity is available. बाकी 80,000 में रख सकता हूँ. सो इसका एडवांटेज ये है कि लेट्स से इस 80,000 में एक इनकम स्ट्रीम है. जैसे 100,000 मैंने इन्वेस्ट किया, हर टोकन पे इट्स मोर लाइक रेंट, राइट. जैसे 100,000 का उन्होंने एक फ्लैट लिया है, उस फ्लैट में वो अपना कमीशन लेंगे 8% रेंट का, और बाकी का 90%, लेट्स से 10%, और बाकी का 90% इन फॉर्म ऑफ USDT they can very well and very easily transfer those 90% of the rent on my Ethereum wallet in the form of USDT, right. So distribution is again a very big advantage. अभी नहीं तो फिर मेरे कंपनी बैंक अकाउंट में जाएगा, वहाँ से पैसा फिर कंपनी डालेगी. इट्स मच ईजियर फॉर द कंपनी ऑल्सो टू डिस्ट्रीब्यूट दैट रेंट. सो एक कॉम्प्लेक्सिटी वो कम करी. और उसके बाद दूसरा, अगर मैंने 20,000 का इन्वेस्ट किया, तो जिसने खरीदा है वो भी एग्रीगेटेड इन्वेस्टर है एंड दैट इज बिलोंगिंग टू दैट कंपनी. For company it's 100,000, as long as this 100,000 का इन्वेस्टमेंट एक पार्टी ने किया या मल्टीपल पार्टी ने किया, दे डोंट केयर. उनका 10% का कमीशन आ रहा है, बाकी का 90% व्हाट दे कैन डू इज ऑन अ प्रो रेटा बेसिस दे कैन अगेन डिस्ट्रीब्यूट. जैसे 100,000 में से 80,000 का मेरा इन्वेस्टमेंट हो गया, 20,000 का एक पर्सन वाई ने सेकेंडरी मार्केट से खरीद लिया. सो जो रेंट होगा वो, एंड देन व्हाट विल डू इज व्हेन आई वुड सेल दिस 20,000, the company ABC would be automatically informed कि 20,000 के शेयर्स एक नए MetaMask वॉलेट में गए हैं, and again it is an aggregated investor, right. So as long as it is aggregated investor, company has no issues. What it will do is no complexity, the same distribution 80-20 के रेशो में ये दो वॉलेट्स में पैसा डाल देंगे रेंट का. So it's amazing actually. It's bringing efficiency, it's cost effective also. Distribution is so easy, self custody है, liquidity बढ़ रही है, so it is bringing so much of advantage. So यही एक बार डिस्कस करना था जस्ट ब्रीफली. अभी हम बात करेंगे some good potential projects and again money point. So ये कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे RWA प्रोजेक्ट्स की, some interesting and fundamentally solid projects, Goldfinch, Centrifuge and Maple Finance.
let's try to deep dive in these projects one by one. Okay, let's start with the Goldfinch.